It's extremely unfortunate. Government should accept the adjournment motions on of the. ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। डीपली डिसअपॉइंटेड। लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने। I'm deeply disappointed. I came with a fond hope that the House will function and that we'll be able to air our views and raise concerns which matter to the people. I'm very, very disappointed that the House is not able to function. But so what are the reasons do you think that the House is not being... As I've said earlier, the government has a majority, so they will always have their way. They must give space for the opposition to raise issues which matter to the opposition, which the opposition deems important, and they must give space for the opposition to have its say and not be adamant and not allow a single adjournment motion. Nothing will happen if they allow an adjournment motion moved by the opposition to be debated. The government, if it ever comes to voting, can always win because they have the majority. गवर्नमेंट चाहती है चर्चा हो सकती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती। आप लोग लगा हम लोग तो चर्चा की मांग कर रहे हैं। आगे क्या रंग होगी सर? इसमें आगे क्या हम लोग चर्चा की ही मांग करेंगे और चर्चा के लिए ही सदन होता है और चर्चा सरकार नहीं चाहती है, इसलिए सदन नहीं चलता। It's extremely unfortunate. Government should accept the adjournment motions on of the opposition. After all, the indictment by the U.S. courts of the Adani conglomerate has a larger significance and connotation beyond just one company. And those connotations are, what are the signals that it sends about India's business environment? Is it accentuated by extraneous considerations, number one? Number two, if the American regulators could act, were the Indian regulators sleeping? Who regulates the regulator? It is only Parliament. And so therefore it is extremely unfortunate that government deliberately does not want a discussion. They don't want the House to run because the responsibility of running the House is of the government. Well, they are absolutely correct. There are other issues also which are equally important, but the issue with regard to India's image among the global business community, especially when you spend so much of your time in trying to woo foreign direct investment and foreign institutional investment, and coupled with the question of, who regulates the regulators, is also an important question. So what's the way to end this logjam? The way to end the logjam is government should agree. The opposition suggested that there should be a discussion on the 75 years of the Constitution. Even that they are not willing for. कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में, वो सब वेस्ट जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई नई चीज़, नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है, पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है, सब चीज़ें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने। आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे, मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन नहीं बनाएंगे अपना कि हम संसद में जाके कार्यवाही देखें। देखिए, इंडिया ब्लॉक है ही नहीं, नाम का ही ब्लॉक है, बाकी सब अपने आप को ब्लॉक करके रखे हुए हैं, कोई किसी का नहीं सुनता और सब में मनीषा है कि सब पीएम बनेंगे। अब पीएम बनने की औकात किसी में नहीं है, तो अलग अलग इशू को लेकर बटे हुए हैं, कोई अदानी को लेकर लड़ रहा है, कोई अपना स्टेट के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन एक देश के लिए
एक देश चलाने के लिए जो एक यूनिटी होनी चाहिए, जो यूनिफाइड एजेंडा होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं उनमें। अपोजिशन ने इस मोदी 2.0 में भी चलने नहीं दिया बहुत दिनों तक, तो हमारी अपोजिशन नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। लेकिन ये देश युवाओं में इतना इंस्पिरेशन है, युवा इतने जोर से तेज से आगे बढ़ रहे हैं कि देश आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके, ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना। नमस्कार। आज विप्लव कुमार देव जी ने और हमारे सांसद नाबाचरण मांझी जी ने बहुत एक अच्छा तारांकित सवाल प्रश्न किया था। बहुत दुर्भाग्य है कि विपक्ष नहीं चाहती कि देश के संसद में सकारात्मक देश के मुद्दों को उठाया जाए, और जबकि ये अवसर होता है, विपक्ष का कोई भी सांसद हो वो सवाल कर सकता है और सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। यही लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन बहुत कमजोरी में विपक्ष आ गया। मुझे लगता है कि जो नतीजा है उससे उस नतीजों ने उनको झकझोर दिया। नतीजा ये हुआ कि हाउस नहीं चला। जबकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया था। स्कूल सेफ्टी की गाइडलाइंस के संबंध में उन्होंने सवाल पूछा था, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया। उसके बाद 2018 में जो हमारे एनसीपीसीआर हैं उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, अपने नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने अपने गाइडलाइंस इश्यू किए हैं। 2021 में हमारे विभाग ने भी गाइडलाइन सभी राज्यों को, यूटी को दिए हैं। और यही नहीं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर हमारा विभाग बैठक करता है। उसमें सभी राज्यों को, यूटी को निमंत्रण दिया जाता है, रिव्यू होता है कि क्या इसमें प्रोग्रेस है, और साथ साथ जो सेंट्रल स्कूल्स और ऑटोनमस संस्थाएं उनको भी बुलाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं एक संवेदनशील उम्र में वो स्कूली सिस्टम में उनके माता पिता उनको सौंप देते हैं। इस विश्वास के साथ वो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और उनकी देखभाल के लिए, प्रबंधन के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये गाइडलाइन इशू हुए हैं। लेकिन कई राज्यों ने अभी तक इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इन गाइडलाइंस के माध्यम से जो साइको सेफ्टी है, साइबर सिक्योरिटी है, जीरो टॉलरेंस हमें बिल्ड करना है सिस्टम में, जवाबदेही हमें लानी है, इन सारी चीज़ों के लिए हमने पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रणाली विकसित की है। अभी भी देश के कई राज्यों ने इसका पालन नहीं किया। झारखंड, कर्नाटक, केरल, कुछ ऐसे राज्य जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की राज्य की सरकार, शिक्षा विभाग इस पर पहल करे।